Hi, Swamini. Good afternoon. Good afternoon, Ashwini. Good afternoon, ma'am. Yeah, Ashwini, would request you to make uh, Rishikesh Pandit. yeah, Rishikesh Pandit as the co-host once he joins. Okay, ma'am.
Swamini, there is a question for you on what would be the topic taken today. Okay, so in today's topic, we would be covering on risk and reward. What are the risk and rewards in investing? So यहाँ पे आज के टॉपिक में हमें पता चलेगा how in detail we will understand about the risk. What are the market risk, systematic risk, unsystematic risk, importance क्या होता है risk का, how much we have to tolerate risk, and how we can diversify our risk, and the time horizon for investment. So this is where our speaker, who is a research analyst, who will come and explain us about, give us more elaborate information about these topics. We have another question. What is FNO and equity? Yeah, so FNO and equity, both are the investment pattern. So equity is where we buy shares, we invest in shares, we create a portfolio. Likewise, FNO is a derivative tool used for used by traders mostly. So FNO trading is mostly done by traders who have technical knowledge, and equity investments or equity portfolio or wealth generation is mostly done on the basis of fundamentals. So आगे जाके हम लोग सीखेंगे what is derivatives also. इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, जैसे मैंने लास्ट सेशंस में भी बताया था कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स या इक्विटी सेविंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ डिफरेंट पार्ट वेयर फंडामेंटल नॉलेज देख के कंपनी के बैलेंस शीट, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, कंपनी के इनकम स्टेटमेंट्स, ये सब चेक करके वी कम टू डिसीजन वेदर टू बाय that equity for our in our portfolio, whether it would create more wealth for us. FNO is completely trading. So FNO will depend upon trading and on trading terms, demand and supply. जैसे आपको याद रहेगा शिवांगी ने जो सेशन दिया था, she tried to explain with the help of bar chart. उसने चार्ट्स पे दिखाया था कि कैसे कैंडल स्टिक अप एंड डाउन होती है, कैसे डिमांड एंड सप्लाई चेंज होते हैं, एंड दैट ट्रेडिंग mechanism is vital for FNO trading. FNO का हम एक अलग से सेशन भी रखने वाले हैं, वेयर व्हाट इज फ्यूचर्स एंड व्हाट इज ऑप्शन, बिकॉज वो दोनों भी वास्ट है. नाम दिखने में है FNO, बट द कॉन्सेप्ट इज वेरी ह्यूज एंड वास्ट. सो फ्यूचर्स में भी ट्रेडिंग होता है, ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग होता है. जिस तरह से मैंने लास्ट सेशन में बताया था आपको कि इक्विटी ट्रेडिंग जो होता है, इक्विटी में वी कैन बाय 1 2 3 4 शेयर्स, द नंबर ऑफ शेयर्स व्हाट वी वांट. बट इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, फ्यूचर्स में वी हैव टू टेक लॉट साइज. सो लॉट साइज के साथ इन्वेस्टमेंट्स भी ज्यादा लगेगा, बिकॉज वी हैव टू गिव मार्जिन अमाउंट, and we are only able to get the lot of shares. हमारे हिसाब से एक शेयर दो शेयर नहीं मिलता है, पूरा लॉट उठाना पड़ता है, ऑन विच रिस्क एंड रिवॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट, क्योंकि उसके साथ रिस्क भी एसोसिएटेड है. Thank you, Swamini. I think we'll just wait for a couple of more minutes and we'll start with the session in Okay, maybe okay. 2 to Let 3. us know, because our today's speaker is also Yeah, I've just seen he's just joined. So just 2 to 3 more minutes and then I think we'll just start the session. all right. Yeah.
It's 3:05. I think we'll start with the session. Good afternoon, everyone. Sabhi ko Jai Jinendra. Can I please request Ashwini to please play the Naukar mantra so that we can start our session for the day? ॐ नमो वरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धाणं ॐ नमो यरियाणं ॐ नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं ईशो पञ्चनमुक्कारो सत्त्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलं पढमं हवै मङ्गलम् Thank you so much, Swamini. Welcome, Rishikesh ji. Swamini, please take over. Yeah. Good afternoon, all, and Jai Jinendra. Today we have with us Mr. Rishikesh Pandit, working as a research analyst at Motilal Oswal. Today he will be taking us through, in understanding what are the risks and rewards before investing, like in relate to investing and trading. Here आज के session में we will be learning more on what are the risks associated in stock market, what are the different type of market risk, the importance of risk tolerance and diversification, and क्या time horizon तक we have to wait for any investment considering long term and short term risk. So Rishikesh, I welcome you all, and I would like to tell you that today's participants are the batch is mix of freshers and experienced professionals. So I request you to please give more of examples while taking the session. Also, I request you to keep the session in Hindi and English. Over to you, Rishikesh. Yeah, thank you, Trishula and Swamini. Good afternoon to all the participants. I hope I won't bore you in today's session. जितना ट्राई करूंगा मैं मतलब रियलिस्टिक और एक लाइव एग्जांपल्स दो, और किसी को भी बोर हुआ तो बता देना मुझे कि बहुत थियरी चल रही है, थोड़ा एग्जांपल्स और रियलिस्टिक बताओ. So this is my first time I'm presenting on this topic to someone of this age criteria. So I'm excited as well and nervous. So please संभाल लेना, ठीक है, कहाँ पे भी गलती हो गई हो. So I will just share my screen first. Yeah, so is my screen visible? Okay. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी इन्वेस्टर्स है, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं कोई भी चीज़ के लिए, सबसे पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि वी नीड टू पोजेस अ रिस्क. सबने वो डायलॉग सुना रहेगा, रिस्क है तो इश्क है. टू बी ऑनेस्ट, दिस इज अ वेरी मच एप्लीकेबल इन इन्वेस्टिंग इन ऑल द प्रोडक्ट्स. मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही वो रिलेट कर पाओगे. आप जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गोल्ड हो गया, कमोडिटी हो गया, कमोडिटी क्या है, कैसे होता है, वो मैं आगे जाके बताऊंगा. तो ये माइंडसेट पहले रखना कि अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम रिस्क भी बेयर करेंगे. ठीक है, अगर मैं 1 लाख डाल रहा हूँ तो उसका 2 लाख भी होगा या 0 भी होगा. सो वो पर्सन टू पर्सन, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिपेंड करेगा. सो मूविंग अहेड, जैसे स्वामी जी ने बताया कि हमारे यहाँ पे फ्रेशर्स भी है, राइट, जो अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है उनको इन्वेस्टमेंट का. तो मैं एक जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50 करके एक इंडेक्स होता है. सो निफ्टी 50 एक बेंचमार्क रहता है कि इंडिया के टॉप 50 कंपनी जो है, सबसे बड़ी कंपनीज जिनका मार्केट साइज बहुत बड़ा है, वो 50 कंपनीज बना मिलके एक निफ्टी 50 करके एक इंडेक्स बनाए. तो अगर हम देखेंगे जुलाई अगर आप चार्ट देखोगे तो जुलाई से लेके हियर, फ्रॉम हियर द मार्केट इज गोइंग इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ट्रेंड. ठीक है, तो मार्केट ऐसे ही मूव करता है. एक दिन ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा,
फिर से थोड़ा ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा नीचे आएगा। तो मार्केट, मैंने बहुत, मतलब मेरे ट्रेन में एक ग्रुप है, सो दीज आर ऑल गुजरातीज, वेरी मच पैशनेट अबाउट स्टॉक मार्केट। तो वो मुझे एक वहाँ पे एक पर्सन है, वो मुझे बता रहे थे कि आदमी और मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो ये मार्केट के लिए भी बहुत ज़्यादा वैलिड है। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले वही सोचना कि मार्केट नीचे भी जाएगा तो यू हैव टू होल्ड, मतलब ऐसे डर नहीं जाना है कि मार्केट नीचे गया, मेरा पोर्टफोलियो नीचे गया तो ऊपर जाएगा नहीं, इवेंचुअली मार्केट ऊपर ही जाता है, बट टाइम लगेगा। ठीक है, ओके। नाउ मूविंग अहेड, हम दो केस देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस में अ, दो हाउसवाइफ्स है, एक मिस जोशी एंड सेकेंड इज मिसेस गुप्ता। दोनों को हमने 1 1 लाख रुपए दे दिए। ठीक है, पहले साल में मिस जोशी ने 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में डाले, एंड सेकेंड ईयर में मिस गुप्ता ने वो 1 लाख रुपए अपने पिगी बैंक में डाले। ठीक है, उनको नहीं पता है कि स्टॉक मार्केट क्या है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। सेकेंड ईयर में मिस जोशी को 18% रिटर्न्स मिला, और उनका 1 लाख का 1,18,000 हो गया। लेकिन मिस गुप्ता ने पिगी बैंक में रखा, उस पैसे को कुछ नहीं हुआ, तो उनका 1 लाख ही रह गया। दूसरे साल स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मिस जोशी को और 11% रिटर्न मिला, तो उसका उनका अमाउंट 1,30,000 हो गया, और मिस गुप्ता का 1 लाख ही हो गया। फोर्थ ईयर में थोड़ा मार्केट ने रिटर्न अच्छा नहीं दिया, 5% ही दिया, तो थोड़ा पैसा बढ़ा, तो उनका अमाउंट 1,37,000 हुआ, और मिस गुप्ता का पिगी बैंक में था वैसे ही रहा। एंड पांचवें साल में मार्केट बहुत अच्छा चला, सब कंपनीज ने अच्छे परफॉर्म किए, मोदी जी फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो मार्केट खुश हो गया, बहुत पैसा बना। तो 20% रिटर्न मिलने के बाद मिस जोशी के 1 लाख के 1,65,000 हो गए। ठीक है, मतलब 5 साल में ऑलमोस्ट 65% रिटर्न मिल गया मिस जोशी को। बट मिस गुप्ता उनके 1 लाख वैसे के वैसे रहे, कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये होता है कि हम सीधा स्टॉक मार्केट में पैसा डाल देने चाहिए? नहीं। उसके लिए मैंने सेकंड केस देखते हैं हम क्या है। सेकंड केस में दोनों को 1 1 लाख रुपए दिए। ठीक है, मिस जोशी ने स्टॉक मार्केट में डाले, और मिस गुप्ता ने अपने पिगी बैंक में ही रखे। लेकिन उस साल फर्स्ट ईयर में मार्केट ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया, कोविड आ गया। कोविड में सबने देखा रहेगा कि मार्केट बहुत गिर गया था, राइट? तो 18% मार्केट गिरा, तो उनका पोर्टफोलियो में जो 1 लाख थे वो 1 लाख के 82,000 हो गए, और मिस गुप्ता का 1 लाख का 1 लाख गिरा। थर्ड ईयर और 11% मार्केट गिरा, तो और 73,000 तक आ गया उनका पोर्टफोलियो। ऐसे करते करते फिफ्थ ईयर तक मिस जोशी का पोर्टफोलियो था वो 55,000 पे हो गया, मतलब ऑलमोस्ट आधा, 50% रिटर्न पैसा चला गया। इन अदर केस मिस गुप्ता के 1 लाख वैसे के वैसे रहे। तो ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया कि हम जब रिस्क लेते हैं तो उसमें पैसे मिलने के तो बात आती है, एंड सेकेंड इज कि पैसे जाने का भी डर रहता है। तो जरूरी नहीं है कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पैसे बनेगा ही या जाएगा भी। आपके कैपेसिटी पे आप कितना रिस्क लेते हो, आप कौन से स्टॉक्स में डाल रहे हो, आप कौन सा पोर्टफोलियो कैसे बना रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी आगे जाते हैं। तो रिस्क है क्या? ठीक है, तो मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ पहले कि रिस्क रेफर्स टू द चांस ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्चुअल रिटर्न्स डिफरिंग फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पैसा डाल रहे हो, लेकिन आपको उतना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, उतना पैसा मिलेगा ही इसकी गारंटी नहीं है। आपका पोटेंशियल लॉस भी हो सकता है कि आपने 1 लाख रुपए डाला तो आपका चला भी जाएगा पूरा 1 लाख, जैसे हमने केस 2 में देखा, या फिर आपका पैसा डबल बनेगा भी। ठीक है, तो ये बहुत सारे रिस्क रहते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि कितने कौन से क्या रिस्क है। ठीक है, वो आगे जाके हम देखते हैं। तो अभी ये रिस्क किस पे डिपेंड करता है? मार्केट कंडीशन रहती है कि मार्केट कैसा है, आजू बाजू क्या चल रहा है, बाकी कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, आपने जिस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किया हुआ है वो कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर इकोनॉमिक साइकिल। सो इकोनॉमिक साइकिल क्या होता है? जैसे फिर इन्फ्लेशन हो गया, जैसे अब हमने जैसे अभी देखा बजट में टैक्स बेनिफिट ज्यादा मिला, तो उसको लेके भी कुछ कंपनीज का फायदा होता है, लॉस होता है, तो वो कैसे होता है हम आगे वाले स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है, तो अभी कंसेप्ट ऑफ रिस्क, अभी देर आर 4 टाइप्स ऑफ रिस्क। पहली है वोलाटिलिटी,
सेकेंड इज अनसर्टेनिटी, एंड थर्ड इज लिक्विडिटी, एंड फोर्थ इज क्रेडिट रिस्क। ठीक है, अब ये वोलेटिलिटी क्या होती है? त्रिशला, माय पीपीटी इज विजिबल राइट? Yeah, it is visible. या Yeah. सो वोलेटिलिटी का मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर आप मेले में गए और मेले पे वहाँ पे गुब्बारे फोड़ने का गेम चालू है, ठीक है, तो वो गुब्बारे ऐसे बहुत धीरे से ऊपर नीचे हो रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं आ रहा है, आप आराम से फोड़ सकते हो, तो आप इजीली फोड़ दोगे। तो ये स्टॉक मार्केट भी वैसा ही है। कुछ स्टॉक रहते हैं जो ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं होते, आपको पता है कि ये धीरे धीरे ऊपर ही जाएगा, आप इन्वेस्ट कर दोगे। बट कभी कभार क्या होता है, वही गुब्बारे अगर हवा आ गई तो बहुत ऊपर नीचे होते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि वो कब ऊपर जाएंगे कब नीचे आएंगे, आप फोड़ नहीं सकोगे। तो वैसे ही कुछ स्टॉक्स होते हैं जो बहुत ऊपर नीचे मूवमेंट होती रहती है, तो वो मार्केट कंडीशंस हो गया या कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है उसके हिसाब से वो मूवमेंट होती है, तो इसको हम वोलेटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब आपको गारंटी नहीं होती है कि अभी क्या होने वाला है। जैसे मैं 2019 का एग्जांपल लेता हूँ। 2019 दिसंबर तक अच्छा चल रहा था मार्केट, ठीक है, सब मस्त पैसे बना रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे, कंपनीज अच्छी परफॉर्म कर रही थी। लेकिन अचानक से मार्च में कोविड आ गया। तो कोविड आ गया तो सब लोग पैनिक हो गए कि क्या होगा कैसे होगा, तो ये हम सबको नहीं पता था। जैसे अभी हम पिकनिक पे जा रहे हैं, ठीक है, पिकनिक पे जा रहे हैं, हम लोग को वेदर कैसा है नहीं पता, बारिश गिरेगी नहीं गिरेगी, हमने जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो हमें गारंटी नहीं रहती, तो हम क्या करते, रुकते, वेट करते हैं कि मौसम का थोड़ा बहुत अंदाजा आ जाए फिर हम बाहर जाएंगे। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में अनसर्टेनिटी यही होती है कि जब तक आपको क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं होती कि कंपनी का, लेट से अभी आपको टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करना है, अभी आपको पता नहीं है कि आज मैं इन्वेस्ट करूंगी तो ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन आपको पता है कि 2 दिन में टाटा मोटर्स का रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट आप रुकोगे कि रिजल्ट कैसे आ रहा है, कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही है, या फिर अभी टाटा मोटर्स गाड़ियां बनाती है, तो आप थोड़ा पढ़ लोगे कि अभी इंडिया में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, गाड़ियों की इंडस्ट्री है, वो कैसी है, डिमांड बढ़ती जा रही है कम होती जा रही है। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत कम कंपनीज बनाती है, जिसमें टाटा मोटर्स एक है, सुजुकी का भी चालू हुआ है। लेकिन उस हिसाब से आप अगर जब डिसीजन ले पाओगे तो ही आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इसको अनसर्टेनिटी बोलते हैं कि आपको अभी पता नहीं है कि अभी मार्केट ऊपर जाएगा नहीं नीचे जाएगा या नीचे जाएगा, आप वेट एंड वॉच करते हो। ठीक है, सेकेंड इज लिक्विडिटी रिस्क। भी लिक्विडिटी रिस्क क्या है वो एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ मैं। लेट से आपके पास 50 लाख की बहुत महंगी गाड़ी है, ठीक है, लेकिन अभी आपको बेचनी है, आपको और अच्छी गाड़ी लेनी है, तो अभी वो गाड़ी आप एक छोटे गांव में जाके बेचोगे तो बिक पाएगी? नहीं बिक पाएगी, क्योंकि कोई लेने वाला ही नहीं है वहां पे। वहां पे सब ट्रैक्टर्स लेने वाले या फिर बुलक कार्स ये सब चीजें लेने वाले लोग रहेंगे। और यही अगर आप कार अगर सिटी में बेचोगे तो सिटी में आपको आराम से वो कार बिक जाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो इंटरेस्टेड है आपकी कार खरीदने में, आप उसका प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है, मतलब गारंटी कहाँ मिलेगी, वो सिटी में मिलेगी। तो इसको हाई लिक्विडिटी बोलते हैं कि आपकी चीज जिस जगह आपको इजीली बेच सकते हैं उसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिक्विडिटी रिस्क भी होती है। अगर आपको समझो टाटा मोटर्स आपके पोर्टफोलियो में है, लेकिन आपको अभी पता है कि टाटा रिजल्ट आ गया, बहुत खराब रिजल्ट आया, कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो आप बेचना चाहते हैं, लेकिन खरीदने वाला ही कोई नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि टाटा मोटर्स का रिजल्ट बेकार है, ये स्टॉक नहीं चलने वाला है, तो ये आपका स्टॉक बिकेगा ही नहीं, बहुत टाइम लगेगा, बिक जाएगा लेकिन थोड़े टाइम के बाद बिकेगा। तो इसको लिक्विडिटी रिस्क बोलते हैं। और लास्ट इज क्रेडिट रिस्क। तो क्रेडिट रिस्क क्या होता है कि आप ऐसे कंपनी को पैसा देते हो कि आपको गारंटी नहीं है कि ये कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, आपको पैसा वापस मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी लेट से आपका दोस्त ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और उसने बोला कि आप मुझे थोड़ा पैसा दे दे, मैं तुमको 10% रिटर्न्स दे दूंगी। आपने उसको 5 लाख रुपए दे दिए कि कर भाई तू बिजनेस स्टार्ट कर। लेकिन उस नेक्स्ट ईयर वो आपकी फ्रेंड बिजनेस रैप करके गायब हो जाएगी, तो गए आपके पैसे। तो इसको क्रेडिट रिस्क बोलते हैं कि आपको कुछ गारंटी नहीं रहती कि वो कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी, जो बैंक से लोन लिया हुआ है वो रिपे करेगी या रातों रात बंद हो जाएगी। जैसे येस बैंक का आपने सुना रहेगा, 2018 19 19 में समथिंग
ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पे थे, लोगों के पैसे अटक गए थे। तो वो क्यों हुए थे कि बहुत गरीब बहुत खराब कस्टमर्स को उन्होंने लोन दे दिया था, तो उनको वापस पैसा मिला नहीं। तो वो मैं एक एग्जांपल आगे आपको डिटेल में शेयर करूंगा। ठीक है। अभी जैसे स्वामी जी ने बताया पहले कि देर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क, वन इज सिस्टमेटिक रिस्क एंड सेकंड इज अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? जो पूरे मार्केट को डिस्टर्ब कर देगी। ठीक है, अभी जो कोई इंसिडेंट हुआ वो पूरे मार्केट को अफेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अभी इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ, इतना मार्केट को अफेक्ट हुआ नहीं, बट अगर होता तो पूरे इंडिया को अफेक्ट करता, स्पेसिफिक इंडस्ट्री को या स्पेसिफिक कंपनी को हिट अफेक्ट नहीं करता ये चीज, तो उसको सिस्टमेटिक रिस्क बोलते हैं। ठीक है, उसमें एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। सो देर आर थ्री एग्जाम्पल्स। फर्स्ट इज इकोनॉमिक फैक्टर, सेकंड इज पॉलिटिकल फैक्टर एंड थर्ड इज नेचुरल इवेंट्स। सो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होता है? जैसे रिसेशन हो गया, मतलब मंदी आ गई, महंगाई बढ़ गई या इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है? जो आरबीआई है वो अपना जो रेपो रेट होता है, जो हमारा, अगर लेट से आप देखते हो बैंक में जाते हो, आप होम लोन लेते हो, तो एक स्पेसिफिक रेट पे आपको देते हैं। तो स्पेसिफिक रेट क्या होता है? सभी 6% आरबीआई से बैंक पैसा लेती है और वो आपको 10% पे बेचती है। तो अगर आरबीआई ने रेट कम कर दिया तो आपके होम लोन के रेट कम हो जाएंगे, अगर आरबीआई ने रेट बढ़ा दिया तो आपके होम लोन के रेट बढ़ जाएंगे। तो अगर ये जो रेट्स वाला जो चक्कर है, तो वो पूरे इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगा। तो इसको इकोनॉमिक फैक्टर्स बोलते हैं। सेकेंड इज पॉलिटिकल फैक्टर। अभी जैसे हमने देखा लास्ट ईयर के इलेक्शन में बीजेपी बहुत कम मार्जिन से जीत के आई। तो नेक्स्ट डे आपने देखा रहेगा कि मार्केट गिर गया था, क्योंकि लोगों को एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट बीजेपी बहुत अच्छे नंबर से जीत जाएगी। तो ये गवर्नमेंट जो फॉर्म होती है उसका भी इम्पैक्ट पूरे इंडस्ट्री पे आता है, सारी इंडस्ट्री पे आता है। उसके बाद पॉलिसीज होती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है कि अभी लेट से इलेक्ट्रिकल व्हीकल का देख लो कि अभी पेट्रोल के व्हीकल्स बंद हो जाएंगे, सिर्फ हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही चलाएंगे। तो इसका सीधा इम्पैक्ट पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे आ जाएगा, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री पे आ जाएगा। और अभी लेट से रेगुलेशंस आ गए। अभी रेगुलेशंस क्या होते हैं? मेटल पे हेवी ड्यूटी लगा दी, या आप बेच नहीं पाओगे इजीली, या फिर टैरिफ लगा दिया, जैसे अभी ट्रम्प का चल रहा था कि वो इंडिया पे टैरिफ बढ़ा रहा है। तो ये सब चीज़ों से भी मार्केट पे पूरा अफेक्ट आता है। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मैंने जो बता दी कि पॉलिटिक्स जो अपना है, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती, तो उसका भी इफेक्ट मार्केट पे दिखता है। लास्ट इज नेचुरल इवेंट्स। नेचुरल इवेंट्स में से क्या हो गया? जैसे कोविड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, जो अपने हाथ में नहीं होता है। कोविड आ गया, सीधा मार्केट को इम्पेक्ट किया, मार्केट सीधा 20-22% गिर गया था इमीजिएटली। तो इससे पूरे इंडस्ट्री को अफेक्ट होता है। सेकेंड इज अर्थक्वेक हो गया। अभी लेट से कोई जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, उस मैन्युफैक्चरिंग हब के पास अगर कोई अर्थक्वेक आ गया तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप गिर जाएगा, तो वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं बनेगा। तो वो सीधा इम्पैक्ट कंपनीज पे आएगा। अभी लेट से जमशेदपुर में स्टील इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, तो वहाँ पे अगर अर्थक्वेक आ गया तो पूरा टाटा स्टील का जो भी प्रोडक्शन है उस पर इम्पैक्ट आएगा, वो सीधा कंपनी पे इम्पैक्ट आएगा और फिर डायरेक्टली आपकी स्टॉक प्राइस पे वो दिखेगा। ठीक है। और एक क्लासिक एग्जांपल है हरिकेन। मुझे एग्जैक्ट कहाँ पे हुआ था ये नहीं बता पाऊंगा मैं, बट एक बार गल्फ कंट्री में हरिकेन आया था और सारे ऑयल रिफाइनरीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो वहाँ पे ऑयल रेट्स बहुत बढ़ गए थे, तो उसका इम्पैक्ट भी मार्केट पे दिखा था। आई होप आई एम क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो इन दी चैट बॉक्स। ओके, ये लास्ट में हम क्यूएनए तो लेंगे ही। जैसे मैंने बोला कि इसका सीधा इम्पैक्ट बिजनेसेस और इंडस्ट्री पे आता है, जो इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी पे इफेक्ट करेगा। तो इन्वेस्टर, एज ए इन्वेस्टर हम क्या कर सकते हैं? हम स्ट्रेटेजी ऊपर नीचे कर सकते हैं कि यार मैं जो पैसा डाल रहा हूँ उसका सीधा इम्पैक्ट मेरे पोर्टफोलियो पे ना हो। तो उसके लिए हमें डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ता है। तो वो क्या होता है मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। सो सेकेंड इज अनसिस्टमेटिक रिस्क, एज आई मेंशन। तो अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? वो सिर्फ आपके इन्वेस्टेड जो कंपनी है उस पे ही अफेक्ट करेगा, पूरे इंडस्ट्री को अफेक्ट, पूरे इंडिया को, कंट्री को अफेक्ट नहीं करेगा। जो भी होगा वो कंपनी को करेगा, नहीं तो इंडस्ट्री को करेगा, या फिर आपका जो भी एसेट रहेगा, अभी लेट से गोल्ड लिया है, उस पर अफेक्ट करेगा। तो इसके एग्जाम्पल क्या है मैं बताता हूँ। फर्स्ट इज कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। मैंने बोला था कि येस बैंक का मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। सो
कुछ साल पहले क्या हुआ था, यस बैंक ने बहुत बड़े बड़े कंपनीज को लोन दे दिया था, जो कंपनीज अच्छी, मतलब नाम बड़े थे लेकिन अंदर मैनेजमेंट उनका बहुत बेकार था। जैसे जेट एयरवेज हो गया जो बंद हो गया, DHFL ग्रुप हो गया, SL ग्रुप हो गया, इन सबको बहुत सारा पैसा दिया और वो कंपनीज ने यस बैंक को पैसा वापस किया नहीं। तो इसको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं, क्योंकि कंपनी ने पैसा, बैंक ने उन कंपनी को पैसा दिया लेकिन उन कंपनी ने वापस नहीं किया। ठीक है, तो बैंक को पैसा नहीं मिला। तो उससे क्या हुआ, जो इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो लूज होने लगा। लोगों को लगने लगा कि मेरे पैसे इस बैंक में सेफ नहीं है। अगर बैंक सामने वाले से पैसा नहीं ले रही है तो मेरे पैसे बैंक यूज करेगी। ठीक है, तो इससे दो चीजें बाहर आई, दैट इज पुअर लीडरशिप। जो यस बैंक के फाउंडर और CEO थे राणा कपूर, उनको पकड़ा गया क्योंकि उन्होंने बहुत हाई लेवल पे रिस्क उठा के सारे उनके जो भी कॉन्टेक्ट्स थे उनको, हाँ, जो डिपॉजिटर्स थे उनके पैसे लेके बांट दिए। ठीक है, तो इससे उनका जो रिस्क था वो छुप गया था, इसलिए सडनली वो सब बाहर आया एंड देन रातों रात बैंक बंद हो जाएगी ऐसे डर मार्केट में फैल गया। तो आप देखोगे यस बैंक का शेयर प्राइस 600-700 रुपए तक चला गया था। अभी यस बैंक का शेयर प्राइस 20 रुपीज के आसपास है। तो ये एक सिस्टमेटिक रिस्क हो गया। सेकेंड इज इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क। लेट से गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी ला दी या कुछ भी कर दिया, वो सीधा इंडस्ट्री पे अफेक्ट करेगा। अभी जैसे मैंने बोला कि जैसे हमने टैक्स बजट में, जैसे गवर्नमेंट ने नया टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस किया था कि 12 लाख तक देयर विल बी नो टैक्स। तो इससे क्या होता है कि कंजम्पशन बढ़ेगा। अभी मेरे पास लेट से मेरी 12 लाख की सैलरी है, तो 12 लाख की सैलरी में अगर मैं अभी टैक्स भर रहा था, अभी मैं टैक्स नहीं भरूंगा, तो मैं जितना टैक्स का पैसा मैं भर रहा था वो मेरे पास रहेगा। तो उससे मेरे खर्चे बढ़ेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा। तो सीधा जो भी FMCG कंपनीज है, जैसे ITC हो गया, टाटा कंज्यूमर हो गया, तो इन कंपनीज पे पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। आपको पता है अभी कि लोग ज्यादा पैसे खर्च करेंगे, शॉपिंग करेंगे, तो आप उस कंपनी पे इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव साइड हो गया। एंड वन नेगेटिव साइड इज कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री पकड़ लो, जैसे HPCL हो गया जो पेट्रोल बनाता है, इंडियन ऑयल हो गया पेट्रोल बनाता है। तो ये कंपनीज अभी तक अच्छी चल रही थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इमीडिएटली अभी कुछ सालों से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यू इम्पोर्टेंस बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं मार्केट में, तो उससे क्या हो रहा है कि जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है उस पर इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि सारे लोग अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज कर रहे हैं। तो ऑयल पेट्रोल का ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है लेकिन एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स इट इज मार्जिनली लो। ठीक है, तो सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क में यही डिफरेंस है कि सिस्टमेटिक रिस्क है वो पूरे कंट्री को, इकोनॉमी को अफेक्ट करेगी। अनसिस्टमेटिक रिस्क एक इंडस्ट्री को, स्पेसिफिक एसेट को, स्पेसिफिक कंपनीज को अफेक्ट करेगी। और ये दोनों मैनेज कैसे होंगे, आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। आप एक ही पोर्टफोलियो में आप एक ही इंडस्ट्री की कंपनी नहीं ले सकते। अगर आपने ऑयल एंड गैस लिया है तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप पूरा पोर्टफोलियो में ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, अगर चले तो एकदम चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो ये आपको ऑयल एंड गैस के सामने आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल का शेयर लेना पड़ेगा। होटल इंडस्ट्री के सामने आपको हेल्थ हेल्थ केयर का स्टॉक लेना पड़ेगा। अगर लेट से ताज ताज होटल सबको पता रहेगा, तो वो भी लिस्टेड है इंडियन होटल्स के नाम पे। तो अभी बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि लोग घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो शेयर प्राइस बढ़ रहा है, कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है। लेकिन जैसे कोविड जैसी सिचुएशन आ गई कि आपका पूरा ट्रैवलिंग वगैरह सब बंद हो गया, होटल सब बंद हो गए, और फिर कौन सा सेक्टर चलेगा, फार्मा सेक्टर चलेगा, तो आपके स्टॉक में, आपके पोर्टफोलियो में फार्मा स्टॉक भी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे पोर्टफोलियो को हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ता। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क टॉलरेंस। तो हर एक का रिस्क टॉलरेंस है वो अलग अलग रहता है। मैं बहुत रिस्क ले सकता हूँ, नेसेसरी नहीं कि आप भी उतना रिस्क लो, या फिर आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हो तो मैं भी ज़्यादा लो, ऐसे नेसेसरी नहीं है। जितने मेरे पास पैसा है, जितना मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, जितना मेरा पैसा चले जाएगा उतना ही मैं रिस्क ले सकता हूँ। अगर लेट से आई हैव 1 लाख रुपीज एंड आई एम ओके कि 1 लाख मेरे चले गए बट आई वांट टू इन्वेस्ट, अगर चले तो बहुत अच्छे चलेंगे और गए तो मुझे दुख नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे लिए जैसे 1 लाख है तो आपके लिए नेसेसरी नहीं है कि उतना ही हो, कम हो, ज्यादा हो, जो भी हो सकता है। तो उससे चार फैक्टर्स जो रहती है जिससे अपना अलग अलग रिस्क टॉलरेंस है वो मैटर करता है। पहला जो है वो एज ग्रुप। अभी जो यंग इन्वेस्टर रहता है, जो अभी उसको जॉब लगी है, 20-22 साल का लड़का, वो बहुत ज्यादा रिस्क ले सकता है क्योंकि उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है।
और स्टॉक मार्केट ऐसी चीज है, जितना ज्यादा टिकोगे उतना ज्यादा पैसा बनाओगे। अभी लेट से 20 इयर्स का जो लड़का है, वो एक छोटे कंपनी के स्टॉक में पैसा डाल रहा है, लेट से जोमेटो में डाल रहा है, क्योंकि पता है उसको नई नई कंपनी है, आगे जाके बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उसको आएगी, धीरे धीरे ग्रो करेगी। लेकिन यही अगर 60 इयर्स के जो सीनियर सिटीजन है, उनको आप बोलोगे कि छोटे कंपनी में पैसा लगाओ, 20 साल के बाद आपको मिल जाएगा, तो मुझे बेवकूफ़ी समझेगा कि भाई अभी मेरे को डालो, 80 साल में मैं क्या करूँ पैसा लेके। राइट। तो वो मैटर करता है। सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट गोल्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एज। अभी लेट्स से आई एम 20 इयर्स ऑफ एज, और मैं मेरे आगे के 25 साल के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, तो मेरे इन्वेस्टमेंट गोल्स उस हिसाब से बनेंगे। मेरा मैरिज हो गया, फैमिली हो गया, बच्चों की पढ़ाई हो गया, उसके हिसाब से मैं पोर्टफोलियो बनाऊंगा। लेकिन वही अगर आप किसी 58 57 इयर्स के इन्वेस्टर को बोलोगे कि आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो वो ज्यादा रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि उसको एफडी के भी 7% 8% मिल गए तो ही विल बी हैप्पी। राइट। उसके गोल्स एग्रेसिव नहीं है जितने मेरे होंगे। नाउ थर्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज फाइनेंशियल सिचुएशन। अभी मैं लेट्स से मेरी इन हैंड 1 मंथ सैलरी इज 1 लाख रुपीज। ठीक है। 1 लाख रुपीज, आई एम सिंगल चाइल्ड, आई एम नॉट मैरिड, तो मैं 1 लाख रुपीज आराम से बहुत सारे एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे खर्चे कम है, मेरा कंजम्पशन कम रहेगा, तो मेरे जो भी पैसे मैं इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं कर सकता हूँ। अगर अगर यही मेरी सिचुएशन 1 लाख में, लेट्स से मेरे बीवी है, बच्चे, बड़ी फैमिली है, मेरे को सबको सब पे ध्यान रखना है, तो मैं इतने ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अगर मेरा दोस्त 1 लाख में से 70,000 इन्वेस्ट कर रहा है, तो नेसेसरी नहीं है कि मैं ही करूँ, मैं अपने हैसियत से इन्वेस्ट करूंगा। राइट। एंड लास्ट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर। दिस इज अ वेरी, व्हाट वुड यू से कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन वो बहुत पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हो। जैसे मैंने जोमेटो का एग्जांपल दिया, अभी मेरे को ऐसे एक सिक्स सेंस मन बोल लो, या फिर कोई एक इंस्टिंक्ट बोल लो, कि मुझे लगता है कि नहीं यार, आगे जाके लोग बाहर होटल में जाना बंद करेंगे, सबको अपने घर पे खाना चाहिए रहेगा, दो पैसा ज्यादा लेंगे लेकिन घर पे खाना बुलाएंगे, तो मेरे को ऐसे लगता है तो जोमेटो चलेगा, तो आई विल इन्वेस्ट इन जोमेटो। बट इन अदर केस, लेट से आप हो गए, आपको ऐसा लगता है कि जोमेटो नहीं चलेगा, लोगों को घर पे खाना खाना ज्यादा पसंद नहीं है, लोग ये अभी ऑर्डर सिस्टम नया नया चल रहा है इसलिए ये चलेगा, लेकिन आगे जाके इसका ग्रोथ नहीं है, तो ये इसको लेके आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो आप इमोशनली आप उस चीज को अगर देखोगे कि स्टॉक चलेगा नहीं चलेगा, वो बहुत पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है इन्वेस्ट करने के लिए, बट एक छोटी चीज होती है जो आपका इन्वेस्टमेंट माइंड है वो थोड़ा ड्राइव करती है। ठीक है। सो असेसिंग रिस्क टॉलरेंस, तो ये वही स्लाइड था जो मैंने पहले वाले स्लाइड में कवर किया, जो रिस्क कैपेसिटी हो, जितना हम पैसा अपना चले जाएगा उतना हम सह सके उतना इन्वेस्ट करें, एंड आप कितना लॉस के लिए कंफर्टेबल हो गए। ठीक है, मेरे पैसे गए गए चलेगा, तो अगर वो कंफर्ट आप पे हो तो उतना ही रिस्क लो। या सो नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डाइवर्सिफिकेशन। सो डाइवर्सिफिकेशन इज, आप हर जगह आपके पैसे डाल रहे हो सो दैट आपकी रिस्क है वो कम हो जाए। जैसे मैंने बोला, अगर आप ऑयल एंड गैस में डाल रहे हो तो उसके सामने ईवी में डालो, अगर ऑयल एंड गैस गिरेगा तो ईवी बढ़ेगा ही, जैसे फार्मा गिरेगा तो होटल बढ़ेगा। तो मैं नेसेसरी नहीं है कि ये यही कॉम्बिनेशन से चलेगा, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप ये सिर्फ स्टॉक्स में नहीं, आप डिफरेंट इंडस्ट्री पे, डिफरेंट एसेट क्लास में, या जो भी जोग्राफिक रीजन जो है, लेट से आपको यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना है, आपको लगता है इंडियन मार्केट बहुत चला है अभी थोड़ा गिरेगा, यूएस मार्केट इतना नहीं चला है, तो आप थोड़े पैसे आपके यूएस मार्केट, यूरोप मार्केट्स में भी डाल सकते हो, सो दैट अगर आपका एक कंट्री पे अफेक्ट आ रहा है तो नेसेसरी नहीं है कि सामने वाली कंट्री भी गिरेगी। ठीक है। नाउ बेनिफिट्स देखते हैं हम। सो रिड्यूसेस एक्सपोजर टू एनी सिंगल एसेट और मार्केट। जैसे मैंने बोला कि आप अगर सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, और गोल्ड और स्टॉक मार्केट का जो कोरिलेशन है वो उल्टा है, अगर स्टॉक मार्केट बढ़ेगा तो गोल्ड गिरेगा, और गोल्ड बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट गिरेगा। एंड इंडियन हाउस होल्ड वुमेन को तो बोलने की जरूरत नहीं है कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो, वो तो बाय नेचुरल रहता ही है। सो आपका जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, अगर आप गोल्ड के सामने देखोगे तो बैलेंस्ड आउट होता ही है। और देर अभी डिजिटल गोल्ड का भी एक चीज है कि आप डिजिटली भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, विच इज कॉल्ड ईटीएफ। गोल्ड के ईटीएफ्स रहते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, हम अगर कभी मौका मिले तो हम उस पर भी बात करेंगे।
तो सेकंड इज हेल्प स्मूथ आउट द वोलेटिलिटीज इन रिटर्न। जैसे मैंने बोला, वोलेटिलिटी ऊपर नीचे आपको पता नहीं रहता है मार्केट कैसे मूव करेगा। अगर आप अभी लेट से आप एक ही बास्केट में 5 फ्रूट्स रखे हो, ठीक है, और पांचों के पांचों एप्पल है, और दूसरे बास्केट में एक एप्पल है, एक ऑरेंज है, एक मैंगो है, एक ग्रेप्स है, तो आप अभी आपके गेस्ट को दोगे तो आपको क्या अच्छा दिखे लगे? गेस्ट क्या लगता है क्या लेगा वो? पूरे 5 एप्पल्स की बास्केट लेगा या डिफरेंट फ्रूट्स की बास्केट लेगा? वो डिफरेंट फ्रूट्स के बास्केट मिलेगा, क्योंकि उसको टेस्ट मिलेगी, वैरायटी मिलेगी, वो मजा आएगा। तो ये डाइवर्सिफिकेशन में वही है कि आपको इन्वेस्ट को मजा आता है, क्योंकि आपके जो रिस्क है एक ही चीज मिलने की, वो कम हो जाती है। ठीक है, मूविंग अप टू नेक्स्ट स्लाइड, टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। सो अगर एसेट क्लास में देखें तो देर आर स्टॉक्स, जैसे शेयर मार्केट के हो गए। सेकंड इज बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स इज बेसिकली फिक्स्ड इनकम रहता है, जैसे एफडी जैसा, उसमें रिस्क कम रहती है, क्योंकि आप कंपनी को एज ए लोन पैसा देते हो, और कंपनी आपको गारंटेड 7 to 9% जो भी कंपनी इंटरेस्ट दे रही है वो देती है। ठीक है। थर्ड इज रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करो, बट जिस वही है कि रियल इस्टेट में लिक्विडिटी कम रहती है। क्यों कम रहती है? क्योंकि आपको अगर आपका फ्लैट बेचना है तो आपको रातों रात फ्लैट नहीं बिकेगा, आपको ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, फिर उसको थोड़ा कमीशन देना पड़ेगा, फिर वो 10 लोगों को दिखाएगा, तो 10-15 दिन तो चले जाएंगे। लेट से आपको अभी 50 लाख की रिक्वायरमेंट है, और आपको अभी आपके पास कैश नहीं है, आपको आपका इन्वेस्टमेंट आपको लिक्विडेट करना पड़ेगा, तो आप स्टॉक्स तो बेच सकते हो। 9:15 से 3:30 के बीच में आपके 50 लाख के आपके स्टॉक्स बिक गए, तो इमीजिएटली आपको बायर मिलेगा, वो स्टॉक्स आपको खरीदेगा, और नेक्स्ट डे आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। लेकिन यही रियल इस्टेट में नहीं होगा। आप रातों रात, अगर आपको 50 लाख की रिक्वायरमेंट लगेगी, तो रातों रात आपका फ्लैट बिकेगा भी नहीं, और बिक भी गए तो पैसे पूरे आएंगे नहीं। एंड थर्ड इज कमोडिटीज। कमोडिटीज इज बेसिकली ऑल दी यूटिलिटी, मतलब गोल्ड हो गया या फिर ऑयल हो गया, इसमें भी इन्वेस्ट करते हैं लोग, जिसमें करेंसी हो गया। जैसे करेंसी कैसे हो गया कि लेट से आप अभी डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे हो, अभी डॉलर रुपी फ्लक्चुएट होते रहता है, तो जो भी डिफरेंस होता है 1-2 रुपए का, तो उस पर भी आप गेन कमा सकते हैं। एंड देयर आर वेरियस डिफरेंट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एज वेल, जिसमें आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो, बट ये बहुत मोटा मोटा बेसिक प्रोडक्ट्स है जिसमें आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ सेकंड इज सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, आपने अभी लेट से अगर आप स्टॉक, एक पोर्टफोलियो में स्टॉक्स में आपने स्टॉक्स ले लिए, 2-3 टाइप के स्टॉक ले लिए, टाटा, लेट से टाटा मोटर्स हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, बट ये सेम इंडस्ट्री के हो गए, राइट, सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हो गए, तो नेसेसरी नहीं है कि आपको इसी इंडस्ट्री में डालना है, क्योंकि उससे रिस्क बढ़ेगी। अगर कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी रिलीज कर दी, तो पूरा इफेक्ट उस पर आएगा। तो दैट्स वाई वी नीड टू इन्वेस्ट इन अदर इंडस्ट्री एज वेल, जैसे हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, फिनेंस एक्सेट्रा। तो उससे क्या होता है, आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड हो। एंड थर्ड इज जोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन। दैट्स व्हाट आई सेड कि आप अलग अलग रीजन या कंट्रीज में इन्वेस्ट करो, यूरोप हो गया, अमेरिकन मार्केट्स हो गया, कैनेडियन मार्केट्स हो गया, एक्सेट्रा। Sir, can you just explain the first factor once again? एसेट क्लासिफिकेशन। Yes, sir. Yeah. So asset class diversification is basically आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, कमोडिटीज में कर रहे हो। तो अगर आप सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो अच्छी बात है, आपका पोर्टफोलियो चल रहा है। लेकिन एक डर रहता है कि स्टॉक मार्केट भी बहुत वोलाटाइल है, आपको रिटर्न्स ऐसे ऊपर नीचे करके आपको रिटर्न्स देगा ही, बट वो लॉन्ग टर्म में देगा। तो आपको एक उसके अगेंस्ट आपको बॉन्ड्स, जैसे मैंने बोला कि फिक्स डिपॉजिट हो गया, राइट, एफडी में आप इन्वेस्ट करते हो, आपको कैसे 6 से 7% रिटर्न मिलता है। तो वैसे बॉन्ड्स रहते हैं जो कंपनीज के रहते हैं, तो दैट इज फिक्स्ड इनकम, मतलब एफडी के ही कैटेगरी में आता है, बट एफडी से 2-3% बेटर रिटर्न मिलता है। लेट से एफडी अगर 7% दे रही है, तो बॉन्ड्स आपको 9 से 10% देगी, और इसमें आपका रिस्क ऑलमोस्ट जीरो रहता है। आपने जो पैसे कंपनी को दिए हैं इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड, आपको उतना पैसे मिलेंगे ही। ठीक है। तो अगर लेट से आपके ये स्टॉक्स में कंपनी आपने, स्पेसिफिक होता है क्या सर बॉन्ड्स, मतलब यस एक यस, पर्टिकुलर कंपनी का अपना बॉन्ड होता है क्या? अपना बॉन्ड रहता है, राइट। जैसे ओके। रिलायंस का हो गया, मारुति सुजुकी का हो गया, टाटा, ऐसे अलग अलग कंपनीज के अलग अलग बॉन्ड्स रहते हैं। हम्म, ठीक है। तो ठीक मैं है वही सर। बोल रहा हूँ कि जैसे आपने 1 लाख रुपीज स्टॉक्स में डाले, आपको पता नहीं है कि ये 1 लाख के 10 लाख होंगे या जीरो हो जाएंगे, इसलिए हम्म। आप वो रिस्क को कट करने के लिए आपने बॉन्ड्स में डाले कि यार और 1 लाख बॉन्ड्स में डालेगी, ठीक है, मेरे 1 लाख अगर स्टॉक में चले भी नहीं तो बॉन्ड्स में मेरे को 9-10% मिल जाएगा।
और सर कमोडिटीज एक बार बताइए ना, क्या होता है एग्जैक्टली? कमोडिटीज इज बेसिकली योर मेटल्स, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ऑयल हो गया, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, ब्रेंट ऑयल हो गया, कॉपर। तो आप मेटल्स में इन्वेस्ट करते हो जैसे। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर मीनल मैम। यस सर, नाउ इट्स क्लियर। या, सो नेक्स्ट इज short term investment and long term investment. So again this is typically depending on person to person कि जो एज वाइज जो इंसान सोचता है उस होराइजन में आपको कितना इन्वेस्ट करना है। अगर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है तो आपको कम रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट आस्क यू टू इन्वेस्ट फॉर मिनिमम 3 to 4 years टू गेट द रिटर्न्स बेटर देन योर फिक्स्ड डिपॉजिट। और जो भी रिस्क फ्री रिटर्न्स होते हैं, रिस्क फ्री रिटर्न्स क्या हो गया, जो डेप्रिशिएट नहीं होती है वैल्यू इजीली, जैसे गोल्ड हो गया, बढ़ते ही जा रहा है, आपको पता है कि सेफ है, 1 साल में 2 साल में तो बढ़ेगा ही। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट हो गया, आपको पता है आपको 8% 7% तो मिलने ही वाला है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर आपको 1 2 साल के लिए पैसे बनाने, तो आपको ये सेफ प्रोडक्ट्स में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। बहुत सारे स्टॉक्स है जो अभी लेट से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गया, हमने लास्ट मंथ ही इन्वेस्टमेंट आइडिया दिया था, दैट कंपनी गेव 27% ऑफ द रिटर्न्स। तो वो मार्केट टू मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करता है, बट ऐसे बहुत स्टॉक्स है जो रिटर्न्स नहीं भी देते हैं इन शॉर्ट टर्म। ठीक है, सो बेसिकली आपको शॉर्ट टर्म के लिए आपको 3 साल रुकना पड़ेगा अगर अच्छे रिटर्न्स, मतलब एफडी अगर 7 8% दे रही है, तो अगर एफडी को आपको बीट करना है, एफडी से ज़्यादा पैसे बनाने हैं, तो आपको मिनिमम 3 साल तक आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और उसे भी हम शॉर्ट टर्म ही कंसिडर करते हैं। एंड सेकंड इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दैट इज मिनिमम 5 years, मतलब आप पैसा डाल के 5 साल भूल जाओ, देखो भी मत कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं अपन। जैसे मैंने बोला, मोर फोकस ऑन स्टेबिलिटी एंड लोअर वोलेटिलिटी। शॉर्ट टर्म में आपका जो पोर्टफोलियो है वो स्टेबल कितना है उस पर फोकस करता है, रेदर देन वोलेटिलिटी। अभी इसमें क्या होता है, सब बड़े बड़े स्टॉक्स इंक्लूड करने का, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, डीवीस लैब हो गया विच इज फार्मा कंपनी। तो सारे बड़े कंपनीज में इन्वेस्ट करो तो धीरे धीरे बढ़ेंगे, 3 साल में आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन यही एक लॉन्ग टर्म में आप रिस्क ले सकते हो, जैसे मैंने जोमेटो का एग्जांपल दिया, मेरे को 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है जोमेटो में, तो मैं आराम से डालूंगा, अगर ऊपर नीचे हुआ भी तो वो स्टॉक 5 साल के बाद ऊपर ही जाना है, क्योंकि मेरे को पता है कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, फाउंडर अच्छा है, कंपनी के गोल्स क्या है। तो मैं लंबे समय के लिए मैं कंपनी पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। अगर मेरे 1 लाख मैंने जोमेटो में डाले, 3 साल में 1 लाख के 50 हजार हो भी गए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 10 साल में मुझे पता है कंपनी ग्रो करेगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस। ठीक है, नाउ सेकंड, जैसे मैंने बोला, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज ऑफन यूज फॉर प्रिजर्विंग योर कैपिटल। आपके जो कैपिटल है आपको बचाने के लिए आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो। लेट से अभी बच्चों की स्कूलिंग करनी है, उसके लिए आपको अभी लेट से 2 साल में इंजीनियरिंग में जाएगा, तो इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस भरनी है, तो फीस तो भरनी है आपको। ये नहीं है कि पैसे बनेगा तो भरूंगी, नहीं बना तो नहीं भरूंगी, तो आप सेफ इंस्ट्रूमेंट में डालते हो, इसलिए ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा शॉर्ट रिस्क फ्री रिटर्न्स में ही इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गया, गोल्ड हो गया, या बॉन्ड्स हो गए। उसके बाद थर्ड इज लोअर रिटर्न्स। शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न्स कम मिलेंगे एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जैसे बोला रिस्क कम है तो इश्क भी कम है, और लॉन्ग टर्म में रिस्क ज्यादा है तो इश्क भी ज्यादा है। ठीक है, एंड लास्ट इज रिस्क, दैट इज योर फर्स्ट रिस्क इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है कि आपको मार्केट फ्लक्चुएशंस, अगर आप पूरे अच्छे कंपनीज में भी डाल दिए अपने पैसे, बट शॉर्ट टर्म में जैसे कोविड जैसी सिचुएशन आ गई, आपके 2 साल पैसे अच्छे बने, लेट से 15 16% पैसे बन गए, लेकिन थर्ड ईयर कोविड आ गया, कोविड में सीधा 20% पोर्टफोलियो गिर गया, तो आपके जितने भी रिटर्न्स थे वो तो गए, ऊपर से आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो भी चला जाएगा। और फिर आपको थर्ड साल में अगर पैसे निकालना है, तो थर्ड साल में आपको अभी पैसे निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि आपने जो पैसे डाले थे वो तो चले गए। एंड अगर हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में देखा तो 2 3, अगर मैंने 10 साल में इन्वेस्ट किया तो तीसरे साल में कोविड भी आया, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पता है उल्टा मैं और डालूंगा कोविड में आके, क्योंकि मेरे को पता है मार्केट गिरा हुआ है कोविड की वजह से, तो मैं
नीचे के लेवल पे अगर पैसा डालूंगा तो आगे जाके ऊपर ही जाने वाला है मार्केट, तो इसमें टाइम का जो रिस्क है वो भी कम हो जाता है। अभी हम एक रिस्क टॉलरेंस में और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज क्या है वो देखते हैं, ठीक है। रिस्क टॉलरेंस इज बेसिकली हायर रिस्क हायर रिवॉर्ड्स, और जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो वैसे इन्वेस्टर को डिसाइड करना है कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ ताकि मुझे जो चाहिए रिटर्न्स उतने मिल सके। अगर मेरे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 8% रिटर्न दे रही है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक मेरे को 15% रिटर्न दे रहा है, तो मैं स्टॉक में डालूंगा, राइट, क्योंकि मैं रिस्क लेना पसंद करता हूँ। नेक्स्ट इज बैलेंस पोर्टफोलियो एम्स टू अचीव डिजायर्ड रिटर्न्स व्हाइल मिनिमाइजिंग इफेक्टिव रिस्क। अभी लेट्स से मीनल मैम ने बहुत आराम से सारे 10-12 स्टॉक्स में पैसे डाल दिए, अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग कंपनी, उसमें थोड़ा कमोडिटीज भी डाल दिया, तो उनका पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा। भले 2-3% रिटर्न मेरे से कम देगा, लेकिन मेंटल पीस बने बने रखेगी। और वही मेरे साइड में अगर देखोगे, मैंने बस 2-3 पोर्ट स्टॉक्स में डाल दिए, वो भी एकदम एग्रेसिव स्टॉक्स, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, तो रोज मेरे को टेंशन रहेगा आज पोर्टफोलियो बढ़ा नहीं बढ़ा, मेरे पैसे बनेंगे नहीं बनेंगे, तो कोई गारंटी नहीं है। सो अनसर्टेनिटी रहेगी मेरे रिटर्न्स की। अभी इसमें रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी जैसे बोल दिया कि एसेट एलोकेशन करो, अलग अलग एसेट्स में आप पैसा इन्वेस्ट करो, उससे आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा। हाँ, सेकंड इज रीबैलेंसिंग विच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर आपको लगता है आईटी इंडस्ट्री बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आपने टीसीएस में, विप्रो में और इन्फोसिस, ये तीनों आईटी कंपनीज में डाल दिए, और आपको लगता है फार्मा कंपनीज नहीं करेगी इन्वेस्ट अभी फिलहाल, क्योंकि कोविड में बहुत चला चला, अभी इनका सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, तो आप क्या करते हो, फार्मा इंडस्ट्री के स्टॉक से वो थोड़े कम कर देते हो, निकाल देते हो, और आईटी के बढ़ा देते हो। तो ये 1 साल आपने ये किया, ठीक है। लेकिन 1 साल के बाद आपको लगता है कि कोविड का सेकेंड वेव आएगा, बोल रहे लोग कि ओमाइक्रॉन आ रहा है या फिर वॉट एवर जो भी सेकेंड वेव आ रहा है, तो उससे आपको लगता है भी फार्मा स्टॉक्स बढ़ेंगे, और फिर से लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आ गई तो फिर आईटी पे हीट आएगा, तो आप क्या करते हो, इमीडिएटली आईटी के स्टॉक्स कम कर लेते हो, थोड़ा प्रॉफिट कमा लेते हो, और वही प्रॉफिट आप फार्मा स्टॉक पे इन्वेस्ट करते हो। तो ये अब कैसे है, कैसे होगा कि आपको न्यूज़ पढ़नी पड़ेगी रोज, आपको पढ़ना पड़ेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन से इंडस्ट्री बूम पे है, कौन से इंडस्ट्री पे इफेक्ट आ रहा है। अभी ये जो वेडिंग सीजन चालू है, अ, मार्च अप्रैल में, तो इसमें अगर आप रोज पढ़ोगे या फिर थोड़ा मतलब दिमाग लगाओगे, तो आपको पता है कि अभी वेडिंग सीजन आएगा, तो वेडिंग सीजन में क्या होता है, सारे ज्वेलरी स्टॉक्स है वो चलेंगे, होटल स्टॉक्स चलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन जो भी अभी लेट से इंडिगो एयरलाइंस, आईआरसीटीसी, ये सारे स्टॉक्स है वो चलेंगे। तो आप फेब में इसी सारे कंपनीज में, इंडस्ट्री के कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे, ताकि क्या होगा, जब कंपनी का रिजल्ट आएगा फर्स्ट क्वार्टर का, तो वो रिजल्ट तो अच्छा ही आने वाला है, आपको पता है। रिजल्ट अच्छा आने के वाले के बाद आपका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, तब आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो ये रीबैलेंसिंग करना जरूरी है, आपको रेगुलरली आपका पोर्टफोलियो ऐसे 2-3 महीने के बाद आपको थोड़ा स्टडी करना चाहिए पड़ेगा। थर्ड इज स्टॉप लॉस ऑर्डर। सो स्टॉप लॉस इज बेसिकली आपका जो भी रिस्क है, अभी लेट से आपने 100 रुपीज का स्टॉक लिया, और आपको आपके एडवाइजर ने बोला कि ये स्टॉक 150 रुपीज तक जाएगा, नहीं तो 80 रुपीज तक गिरेगा, ठीक है। तो आपको पता नहीं है कि 80 रुपीज तक कब गिरेगा, आप पूरे टाइम वो स्टॉक को नहीं देख सकते, राइट, कि 80 पे जा रहा है जा रहा है, तो आप क्या करते हो, 80 रुपीज पे स्टॉप लॉस लगाते हो कि वो स्टॉक की प्राइस अगर 80 टच हुई तो ऑटोमेटिक मेरे पोर्टफोलियो से चला जाएगा, मतलब मैं 20 रुपए का ही लॉस बेयर कर रहा हूँ। अगर 80 के नीचे 60-50 पे चला गया तो मेरे 50 रुपए जा रहे हैं। तो इसलिए आपके हर एक स्टॉक पे, अगर आप अनसर्टन हो, आपको पता नहीं है शॉर्ट टर्म में कितना जाएगा, तो स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड कि अभी रिस्क इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। आपको अगर पैसे बनाने, वेल्थ क्रिएशन पे आपको फोकस करना है, तो रिस्क आएगा ही। आपको रिस्क फ्री रिटर्न्स कहीं पे भी इन स्टॉक मार्केट में नहीं मिलेंगे, चाहे आप गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, स्टॉक्स ले लो, आपको रिस्क हर जगह आएगी। गोल्ड भी, गोल्ड देखो इवेंचुअली गोल्ड जाता ऊपर ही है, लेकिन उसके भाव भी ऊपर नीचे होते ही रहते हैं। अगर आज ऊपर है, कल नीचे, परसों ऊपर है, नेक्स्ट डे भी ऊपर है, लेकिन अचानक से नीचे आ गया, तो रिस्क तो रहेगी। तो रिस्क इज एन इटर्नल पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट।
सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग रिस्क इज क्रूशियल फॉर अचीविंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स। जैसे मैंने बोला, आप कितना रिस्क प्रोसेस कर सकते हो, आपके लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, शॉर्ट टर्म प्लान क्या है, आप जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो, जो वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, वो किस गोल के लिए करना चाहते हो, वो समझ के रिस्क लेना बहुत नेसेसरी है। आपकी दोस्त अगर इन्वेस्ट कर रही है इसलिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू। एंड लास्ट इज डाइवर्सिफिकेशन एंड अप्रोप्रिएट एसेट एलोकेशन। ये चीज मैंने ऑलमोस्ट हर स्लाइड में ये सेंटेंस डाला है, जस्ट टू लेट यू नो द इंपॉर्टेंस कि ये डाइवर्सिफिकेशन और अप्रोप्रिएट एसेट एलोकेशन क्यों जरूरी है, बिकॉज दीज आर द की स्ट्रेटेजी फॉर एनी इन्वेस्टर टू मैनेज द रिस्क एंड गेट द डिजायर्ड रिटर्न्स। सो या, थैंक यू फ्रॉम माय साइड। आई होप मैंने बोर नहीं किया सबको, क्योंकि थोड़ा टॉपिक था ऐसे कि आपको थेरोटिकल था, मैंने जितना हो सके मैंने उतना एग्जांपल देके एक्सप्लेन करने की ट्राई की। तो याद Rishala, if anybody is having any doubt, Yeah, you thank you, can. Rishikesh. They were really useful, the key takeaways. And now I would request everybody, if they have any kind of question and answers, Rishikesh is there to answer. Please make good use of it. And any doubts, queries related to the session can be asked. How can we buy unlisted companies? Sorry, how can we buy? Okay, so Unlisted unlisted companies. So we at Motilal do offer that service. If you want to invest, can come and contact the respected RM। मतलब अभी मैं RM की डिटेल्स नहीं दे सकते, बट अनलिस्टेड कंपनीज में आप जो अब स्टॉक्स हो गया, जीरोधा हो गया या मोतीलाल ओसवाल कैब हो गया, आप सीधा आपको इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपके एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्टमेंट होती है। आपके फंड्स जब हमारे इसमें मोतीलाल के अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो वो शेयर हम आपके बिहाफ पे बाय करेंगे, और वो शेयर बाय करके आपके डीमैट में दिखेगा, बट वो लिस्टेड वाले सेक्शन में नहीं दिखेगा, अलग से दिखेगा। अभी लेट से NSE हो गया, NSE का भी, NSE इज नॉट लिस्टेड बट यू कैन इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, तो वो NSE के जो शेयर है वो आपके डीमैट में दिखेंगे, बट लिस्टेड वाले सेगमेंट में नहीं दिखेंगे। बट जब NSE का IPO आएगा तो ऑटोमेटिकली आपके जब लिस्ट होने के बाद वो जो अनलिस्टेड शेयर आपके डीमैट में है वो आपके पोर्टफोलियो में आ जाएंगे। How much amount? दैट डिपेंड्स ऑन, मतलब इन्वेस्टर पे डिपेंड करता है कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है, कैपिंग नहीं है उसके लिए। No minimum limit or no maximum limit? नो। सर कम कम रिस्क में ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमाए सर? कम रिस्क में ज्यादा प्रॉफिट तो FD में ही है मैम, क्योंकि देखो आपको मैं बोलना चाहूंगा, रिस्क हर जगह है। अभी आपने मतलब लेट से आज में आपको 10 कम टाइम, मतलब क्या होगा, कम रिस्क बोल रहे हो कम टाइम बोल रहे हो? नहीं, जैसे रिस्क कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो इस शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, निफ्टी 50 कंपनीज जो है, जो इंडिया के टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स है, तो आप उसमें पैसा डालो। वो सबसे बड़ी कंपनीज है जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, सालों साल चल रही है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, तो उस कंपनी में अगर आप उस 50 कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो अपने आप अपना वो रिस्क है वो नलीफाई हो जाएगा। और जो स्टैंडर्ड रिटर्न जो निफ्टी देता है 10-15% के आसपास, वो आपको सालों साल मिलते जाएगा। बट मैम कैसे होता है ना कि अगर आप आपकी सोच ये है कि आपको कम रिस्क लेके आपको पैसा बनाना है, बट अभी राइट, तो अभी वो पैसा कितना बनाना है, देर इज नो लिमिट फॉर दैट। आपको 50% बनाना है, 15% बनाना है, 20% बनाना है। अभी ऐसे बहुत स्टॉक है जो एक एक साल में 200-300% रिटर्न्स देते हैं, लेकिन जब आप इन्वेस्ट करते हो ना, तब गारंटी नहीं रहती कि वो स्टॉक कैसा चलेगा, क्योंकि डर रहता है कि कंपनी छोटी है, लास्ट 10 साल से तो इतना परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन अचानक से वो कंपनी परफॉर्म कर देती है। तो क्यों करती है? इसी की वजह से करती है कि कोई उसको बड़ी ऑर्डर साइज मिल गई, सेल्स बढ़ गया, कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट आ गया। Rishikesh, we have a few questions in the chat box also. Yeah, I'll just yeah. read them out. Uh, सर आई हैव अ क्वेश्चन, ये डीमर्जर वगैरह क्या होता है एग्जैक्टली? मर्ज सो एंड डी डिविडेंड्स वगैरह भी तो ऐसा बताइए ना। राइट, सो डीमर्जर क्या होता है? लेट अभी रिसेंटली ITC का हुआ था। ITC पता रहेगा आपको, राइट? जो आशीर्वाद आटा वगैरह बनाती है, वो कंपनी ITC है।
इंडियन टोबैको कंपनी, अपना जो नोटबुक्स भी आता है आईटीसी का, क्लासमेट जो नोटबुक आता है वो आईटीसी का है। तो ये बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो उसके अंडर उनके सब्सिडरीज है, जैसे आईटीसी होटल्स हो गया, आईटीसी एफएमसीजी हो गया। एफएमसीजी मतलब यही जो आशीर्वाद आटा वगैरह सब आता है। अभी जनवरी में क्या हुआ था, इन लोगों ने आईटीसी होटल्स इनके अंडर ही था, तो इन्होंने क्या कर दिया, आईटीसी होटल को अलग कर दिया, डीमर्ज कर दिया। तो अभी स्टॉक मार्केट में आईटीसी करके भी कंपनी लिस्टेड है और आईटीसी होटल्स करके अलग से लिस्टेड है दोनों एक ही, पेरेंट कंपनी एक ही है, लेकिन उनको अलग अलग कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, अभी लेट से आपके पास 100 शेयर है आईटीसी के, ठीक है। तो आपको ये डीमर्जर का कुछ बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना। मिनल, एम आई ऑडिबल? Yeah, Yes, sir. you are या audible. या सो आपको कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, राइट, कि आपके पास ऑलरेडी आप आईटीसी के शेयर होल्डर हो, तो अगर आईटीसी होटल अलग से लिस्ट हो रहा है, अलग हो रही है कंपनी, तो आपको उसको कुछ फायदा होना चाहिए। तो आईटीसी ने क्या किया था, हर 10 शेयर के सामने एक शेयर फ्री दे दिया था आईटीसी होटल का। मतलब आपके पास आईटीसी के 10 शेयर है तो आपके आईटीसी होटल के और एक शेयर मिल जाएगा। तो जैसे आपने, मैंने बोला आपके पास 100 शेयर है आईटीसी के, तो वैसे 10 शेयर आ जाएंगे आईटीसी होटल्स के, ठीक है। तो डिविडेंड क्या होता है, ये पहली बात हो गई डीमर्जर। आई होप आई एम क्लियर, मिनल मैम। तो यस सर, आपने जो समझाया वो बहुत अच्छे से समझ में आया, लेकिन डीमर्जर इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर द क्लाइंट, मतलब जैसे हम जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए। नेसेसरी, बट आपको मतलब वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। अगर कंपनी अच्छी हो, कंपनी का मतलब अभी डीमर्ज क्यों कर रहे हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर अभी कैसा ओके। होता है, जैसे आईटीसी का होटल, अगर आप सोचोगे आईटीसी होटल अच्छा परफॉर्म कर रही है, हम्म। ठीक है, तो कंपनी चाहती है कि इसका अलग से बिजनेस हो, हम ग्रो करना चाहते हैं, तो एक अच्छे कॉज के लिए उन्होंने डीमर्जर किया हुआ है। बट अगर आप देखोगे, अगर कोई अलग दूसरी कंपनी पकड़ लो, लेट्स से टाटा ग्रुप पकड़ लो, नहीं टाटा विल बी वेरी बैड एग्जांपल, रिलायंस पकड़ लो, चलो। रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, आपको पता है। लेकिन रिलायंस में जो कोई कम प्रॉफिट कमाने वाला जो यूनिट है, लेट्स से जियो, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, जियो कम कमा रही है, अच्छी कंपनी, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। जियो कंपनी नहीं परफॉर्म कर रही है अच्छी, ठीक है, तो उसका जो फिगर्स है वो रिलायंस के बैलेंस शीट में अफेक्ट कर रहे हैं। तो कंपनी उसको डिमर्ज कर देती है जस्ट टू न्यूट्रलाइज की ये कंपनी अलग से लिस्ट हो, इसका ऑपरेशंस अलग से चले। बट इसमें इन्वेस्टर के लिए निगेटिव इफेक्ट कुछ नहीं होता, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जो कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो कंपनी तो चली रही है, ठीक है। ओके, ऐसे तो सर डीमर्जर जैसे होता है वैसे मर्जर भी कुछ होता है क्या? मर्जर मतलब। भी होता है, लेट्स से अभी टाटा का ही टाटा मोटर्स करके, और टाटा मोटर्स तो है एंड टाटा मोटर्स डीवीआर करके था, ठीक है। डीवीआर इज बेसिकली डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, वो एक दूसरा टॉपिक है, मैं अभी उसमें नहीं बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो वो दूसरा यूनिट था विच वॉज अ गुड परफॉर्मिंग यूनिट। तो उन्होंने क्या किया था, टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर को मर्ज कर दिया था। मतलब दोनों कंपनी एक ही एंटिटी में मर्ज करके नाउ दे आर वर्किंग टुगेदर। तो उसमें भी तो वही होता है इसमें जो फिर भी इन्वेस्टर को कैसे बेनिफिट होता है? इन्वेस्टर्स को। सर मैम ये क्या होता है फिर, जो मैंने जैसे बोला कि हर एक शेयर के सामने और एक कंपनी शेयर दे देती है, तो आपका कैपिटल ग्रो हो रहा है ना। तो अभी आपके जैसे 100 आईटीसी के शेयर्स थे आपके पास, लेट से 1 रुपए का एक शेयर था, जैसे आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया था, तो हाँ, आपको वो उसके समझ सामने, आया। तो मर्जर में उसके बेनिफिट सामने कैसे होता है? मर्जर में क्या होता है कि आपके जो लेट से आपके टाटा मोटर्स में सेम 100 शेयर है और इधर 10 शेयर है, तो आपके कंपनी उसमें भी क्या बोलते हैं, शेयर्स बढ़ा देते हैं, और फिर आपके जो दूसरे कंपनी के जो पोर्टफोलियो में शेयर्स है उसके प्रोपोर्शन में भी दे गिव यू अ बोनस, या फिर डिविडेंड डिक्लेयर करती है। जैसे ओके। मिनल मैम ने पूछा डिविडेंड क्या है, सो डिविडेंड इज बेसिकली जब कंपनी का बिजनेस अच्छा होता है, प्रॉफिट ज़्यादा कमाती है, तो दे डिस्ट्रीब्यूट दैट मनी अमंग द इन्वेस्टर्स, तो उसको डिविडेंड कहते हैं। तो वो कैसे होता है, हर 10 रुपए पर शेयर, मतलब आपके पास अगर एक शेयर है तो आपको 10 रुपए मिलेंगे, 100 शेयर है तो 1000 रुपए मिलेंगे, सो दैट इज डिविडेंड। How ओके do सर, थैंक यू hi सो मच। yeah Yeah, so we have one question Yeah, from, Rishikesh, we have some questions in the chat box. yeah, Barkha Jain is asking whether she can get shares of Zerodha. I don't know to be honest if Zerodha के unlisted shares है market में, Okay. so I can't give a clarity on it, but you can Google it or you can reach out to our RMs, they can help you definitely. Okay. And then there's and another question which says, is this facility available for selling of Yes, unlisted yes, company shares? yes. You can
इट कम्प्लीटली वर्क्स सिमिलर टू व्हाट लिस्टेड कंपनीज वर्क। सिर्फ आपको एडवाइजर को बोलना पड़ता है, देन ही विल फाइंड अ बायर अगर आप बेचना चाहते हो। तो इसमें भी एज मैं आई एक्सप्लेन, लिक्विडिटी कम रहती है क्योंकि सारे लोग अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो जैसे आपका जीरोधा का एग्जांपल लिया, जीरोधा में आप जैसे लिस्टेड कंपनी फटाफट बेच सकते हो ना, तो अनलिस्टेड में थोड़ा टाइम लगता है, बट या यू कैन से। And somebody wants to know more elaborately on Nifty. या सो वो मैंने वो क्वेश्चन के बाद ही बता दिया था कि निफ्टी का, कि जो टॉप 50 कंपनी होते हैं जो बड़े। एंड यस मनीषा मैम, हर साल चेंज होते रहता है, जैसे जैसे मतलब लेट से टॉप 50 कंपनीज तो है निफ्टी 50 में, बट देर इज अनदर इंडेक्स कॉल्ड एज निफ्टी नेक्स्ट 50, मतलब 51 to 100 की जो कंपनीज है, अगर उस और ये जो कंपनी जो मार्केट कैप के हिसाब से चलती है, मतलब जिसका मार्केट शेयर ज्यादा है, अगर किसी और कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ गए तो उसको निफ्टी 50 में इंक्लूड करके, जो जिसका कम हुआ है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। तो ये चेंज Sir, होते what रहते is हैं। the scope of Yes Bank now? यस बैंक में There's ऐसे some merger मतलब, with SBI. SBI is joined in no, something no, no, with there Yes is Bank. not a merger with SBI. Basically, there is a Sumitomo Bank, which is a Japanese bank. They are buying a stake in Yes Bank, and Yes. SBI is selling that stake. Huh. So 51% of stake is being bought by that Sumitomo Bank. So I don't have a strong view on Yes Bank, but long term, there are many other options, I would say, in So banking. Yes Bank will not improve now, according to you. Yes Bank will not go further. No, no, I didn't say that, but इतना स्टडी नहीं है उस पे, स्लो ग्रोइंग बैंक है, इफ यू वांट टू देखिए इन्वेस्ट फॉर बैंकिंग अ सेक्टर लॉन्गर सभी होराइजन। स्लो है, देखिए बैंकिंग सेक्टर सभी बैंकिंग compared to सेक्टर इज other स्लो, sectors, बट देयर आर banking sector is a giant bit slow, but it is. yeah, but there are many giants present in the market, HDFC, ICICI, Kotak, which are already doing good. So you know which are the banks which are performing well, then rather than investing in those stocks, you to try to go somewhere else, which you No, have because since uncertainty. there's this buying and this, that is why I'm asking. There is this going on now, उसी की Acha, वजह. okay. Related to that news, okay. See, the impact won't change. As yesterday only, I was reading one article. One analyst was saying that the business model is not going to change even after the Sumitomo Bank is buying the stake. There will be a small movement, पॉजिटिव सेंटिमेंट तो है कि थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन इतना इतना रिटर्न ज्यादा बढ़ेगा नहीं मतलब बढ़ेगा, लॉन्ग। बस एक स्मॉल मार्जिनल राइट, राइज होगा बस. राइट, राइट। Thank you. And the further, what is the scope now of the share market trending? It looks upward or still there is a pullback? देयर मे बी अ पुल बैक, अभी फिलहाल अच्छे मोमेंटम में चल रहा है, बट ऑलरेडी द मार्केट इज करेक्टेड, बट इट विल But गो someone was साइडवे। saying it might go down again at 2000 points. So is it a right time to buy now or wait? See, if you want to stay invested for a longer time now, there is always a good time to buy. But at That is current true. level, Hmm. yeah, but at current level, from 2 to 3 days, the market is giving good returns. You can wait. It will correct. अभी आज फ्लैट था, राइट? हाँ, आज फ्लैट था. हाँ, तो अभी थोड़े 2 3 अभी नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी भी आएगी नेक्स्ट वीक, देखते हैं कैसे होगा, बट यू कैन वेट। Yes, thank you, thank you, thank you. थोड़ा करेक्शन आएगा क्योंकि ये रैली बहुत शार्प रैली आई है ना, तो थोड़ा हाँ, कूल तो डाउन 2000 पॉइंट का कोई बोला करेक्शन फिर आएगा. होगा। ओके, ये इतने का आई कांट से, कोई नहीं इतना आएगा प्रेडिक्ट कर नहीं। सकता, कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है. हाँ, हाँ, Thank you so much. Anyone, या any more questions? Yeah, I have a question. See, and like the way you explained everything, like Nifty and all the stock, I wanted to ask you how to, identify the stocks, which where we should buy and how to identify it. ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रीडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट इन इन्वेस्टिंग। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा डेली न्यूज़पेपर रीड करना बहुत नेसेसरी है। अभी लेट से बहुत पॉलिसीज आते रहते हैं, इंडस्ट्री ट्रेंड समझना पड़ता है। जैसे मैंने बोला, अभी लेट से होटल इंडस्ट्री हमने पकड़ ली, होटल इंडस्ट्री हो गया, तो होटल इंडस्ट्री जो है वो सीधा अपने ट्रैवल इंडस्ट्री से भी कनेक्टेड है, राइट? तो आपको लगता है, जैसे मैंने वेडिंग सीजन का एग्जांपल दिया कि अभी तो चलो ये जो वेडिंग सीजन है वो चला गया। अभी लेट से हम दिवाली में बैठे, सितंबर अक्टूबर में बैठे, आपको पता है कि दिवाली आने वाली है, फेस्टिवल्स आएंगे, वेडिंग सीजन आएगा, तो आपको उस इंडस्ट्री का देखना पड़ेगा कि अभी जो होटल इंडस्ट्री जो है, एविएशन जो है, ट्रैवल इंडस्ट्री वो ग्रो करेगी, तो यू नीड टू
फाइंड आउट दो स्टॉक्स जो इस इंडस्ट्री में है. सो देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड स्क्रीनर, इफ यू गाइस नो. Okay. Yeah. ठीक है. इफ आई विल शेयर माय स्क्रीन, जस्ट अ मिनट. Uh, and like, can you please suggest certain websites where we can do the research work and all, like good websites? इज माय स्क्रीन विजिबल? Yeah, it's Yes, visible. it is. ये चार्ट दिख रहा है? हाँ. ओके. सो देयर इज स्क्रीनर. अभी लेट्स से ये जो वेबसाइट है वहां पे आपको सारे कंपनीज के डिटेल मिलेंगे. अभी लेट्स से आई एम टाइपिंग हियर इज कंसल्टेंसी सर्विसेज. ठीक है. तो यहाँ पे मुझे पूरा कंपनी के बारे में दिखेगा, व्हाट कंपनी इज डूइंग, कंपनी क्या करती है, इसका मार्केट कैप दिखेगा कि मार्केट कंपनी कितनी बड़ी है, सर कंपनी के चार्ट शेयर. नहीं दिख रहा है, चार्ट नहीं दिख रहा है. हाँ हाँ, मैंने वो चेंज किया वेबसाइट. मैं जस्ट देखना चाहता था कि मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या आप लोगों को. ठीक है. तो ये कंपनी का शेयर प्राइस है ये, और ये डिविडेंड यील्ड, मतलब 1.5% डिविडेंड देती है कंपनी. ठीक है. आपको ये भी दिखेगा. ये चार्ट हो गया. How आपको do they याद है? calculate dividend? It like it's calculated on the basis of face value or book value or like फेस वैल्यू, or फेस वैल्यू, फेस वैल्यू. face value. Okay. सो दिस आर दी प्रोज एंड कॉन्स. अगर अभी देखो, मैं समझ सकता हूँ नॉट एवरीवन इज फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाना है आपको. सिर्फ कंपनी अच्छी कर रही है ना, क्या कर रही है, रिटर्न्स कैसे दे, ये समझना है तो आपको ये वेबसाइट बहुत बेस्ट है. आपको इजी लैंग्वेज में समझा देगी इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है. ठीक है. तो ये अगर आप देखोगे पीयर कंपैरिजन में देखोगे तो आपको ये सारे 7 जो कंपनीज है वो टीसीएस के कंपटीटर्स दिखेंगे, जो बहुत बड़े कंपनीज है. तो आप ये 7 में से आप कोई भी अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो अगेंस्ट टीसीएस. तो ये इंडस्ट्री वाइज आपको दिखेगा कि ये इंडस्ट्री के, आईटी इंडस्ट्री के इतने कंपनीज, ऐसे बहुत कंपनीज है आईटी के, बट ये टॉप 7 कंपनीज यहाँ पे लिस्ट हुए हैं. नाउ सेम गोज फॉर होटल, होटल इंडस्ट्री. अभी लेट्स से मैंने इंडियन होटल सर्च किया. सो इंडियन होटल्स बेसिकली ताज की प्रॉपर्टीज. ठीक है. ताज जो होटल्स है वो उसकी पेरेंट कंपनी है इंडियन होटल्स. आप नीचे जाओगे तो आपके इतने होटल्स आपको दिखेंगे, आईटीसी होटल्स, सीआईएच, एलिट होटल्स, वेंट्यू, लेमन ट्री, महिंद्रा हॉलीडे. तो आपको यहाँ पे सारा डेटा दिख जाएगा कि आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है. तो ये वन ऑफ दी नहीं, मतलब मैं तो अभी भी यही वेबसाइट यूज़ करता हूँ. अगर इमीडिएटली मुझे किसी कंपनी के बारे में पढ़ना है, देखना है, तो मैं फटाफट ये वेबसाइट पे जाके इस पे सारे उसका बैलेंस शीट भी दिख जाता है, सेल्स क्या है, प्रॉफिट क्या है. और उस पर नीचे आप जाओगे तो आपको ये भी दिखेगा कि इस कंपनी में ने कौन से कौन से लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है. जैसे आप देखोगे प्रमोटर्स, प्रमोटर्स मतलब जो कंपनी के मालिक है, जो पूरा ग्रुप है, उन्होंने 38% कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है. एफआईआईज हो गया, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स, 27%. डोमेस्टिक इन्वेस्टर दैट इज 19%. गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट ½ इन्वेस्ट किया, 0.2% इन्वेस्ट किया हुआ है. और पब्लिक मतलब हमारे जैसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने 15.5% कंपनी में इन्वेस्टेड है. तो एक मैं वैसे शॉर्ट बताता हूँ कि ये जो प्रमोटर इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये 38%, ये देखने का कि ये सालों साल अगर बढ़ते जाना चाहिए. ठीक है. अगर ये बढ़ता है तो ये समझना है कि कंपनी के जो मालिक है दे आर इन्वेस्टिंग इन देयर ओन कंपनी, मतलब उनको पता है कि मेरी कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, आगे के क्या प्लान्स. अगर ये घटते गया ना, अगर ये 38 से 10 तक आ जाता है, तो समझ जाने का कि प्रमोटर्स को, मालिक मतलब वो जो मालिक है उनको ही विश्वास नहीं है वो कंपनी में, तो अपन ने भी कल्टी ले लेने की. ठीक है. तो बहुत ऐसे छोटे छोटे पैरामीटर्स होते हैं. दिस इज वन ऑफ द पैरामीटर्स. Sir, I have a question. Like you या said, when the Nifty 50 से जब वो market cap कम होता है तो the stock gets removed and added to the next, no? Does that affect the investment value or investor का ये वो कुछ? हाँ, थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट आ जाता है ना कि मेरी जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट था वो अभी टॉप 50 में नहीं रही. तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा करेक्शन नहीं आता है, थोड़ा बहुत 3-4% का करेक्शन आता है. Okay, thank you. सर पेटीएम के बारे में पेटीएम के बारे में मतलब अच्छी कंपनी है, थोड़ा उसमें मैनेजमेंट इश्यूज है, बहुत सारी चीज़ें ला रही है, हेवी लेंडिंग है. तो एनबीएफसी में थोड़ा स्ट्रगल है.
बट फिर उसमें आप देखोगे बजाज फाइनेंस अच्छा है, फिनसर्व अच्छा है, सम्मान कैपिटल अच्छा है, श्रीराम कैपिटल अच्छा है, तो कॉम्पिटिटर्स इतने हैं ना, तो ये सारे स्टॉक्स पे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो व्हाट अबाउट LIC? उसका IPO जब से ओपन हुआ है तब से इट्स बीन गोइंग डाउन। LIC हाँ, लेकिन बीच में करेक्ट हुआ था, मतलब मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ LIC, सो आई कांट कमेंट, बट बीच में रिजल्ट अच्छा आया था तो अच्छा रिटर्न दिया था। आई थिंक IPO से लिया हुआ है जिसने, उसके तो पैसे थोड़े नेगेटिव नहीं है, बट IPO के बाद जो गिरने के बाद जो करेक्शन आया था उसके बाद तो अच्छा खासा ऊपर आया है स्टॉक। Yeah, the इट्स अ amount of गुड स्टॉक। loss is reduced, but it has not yet come to the positive value. हाँ, फ्लैट चल रहा है, सेम इज विद IRCTC, फ्लैट चल रहा है। तो So in आई वुड, ऐसी situation में should we wait till they become positive, या नहीं loss में है तो भी we should sell off the अभी shares आपका and सी दैट द लॉस यू आर बेयरिंग, इफ इट इज मैनेजेबल, इफ यू आर ओके देन यू कैन एग्जिट, बट इफ यू फील कि नहीं बहुत पैसा है, यू कांट अफोर्ड, देन यू शुड वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। okay. What This about advice is Alok Industry, particularly for please? सॉरी, डिफेंस this What सेक्टर में advice about is Alok particularly Industries? Alok Industries. हेलो, नो आई डोंट हैव आइडिया। the advice you gave, that was particularly for LIC or for any company in that matter, if LIC, that is LIC, LIC, LIC। okay. I think it would be better if you don't discuss about stocks because the conversation won't end, and I don't have view on all the stocks because I manage a specific industry, and then it will be very difficult for me to answer. Sir, which Okay. sector you recommend to invest now? What sector you think is good for investing right now? Invest in India. No, India is fine, but basically जैसे आपने बोला ना ऑटोमोबाइल डिफेंस है, डिफेंस अच्छा है, फार्मा अच्छा है, आईटी में थोड़ा प्रेशर है, बट फॉर अ लॉन्गर पीरियड 10 years यू कैन इन्वेस्ट इन IT। फिलहाल डिफेंस में अच्छा है, डिफेंस अच्छा है। डिफेंस। Okay, thank you, sir. What is margin pledge funding? Margin pledge funding, as much as I know, if you get a margin from a broker, ठीक है, आपके पास अभी लेट्स से you don't have 1 lakh rupees, but the broker will get those shares of worth 1 lakh, and then आप वो as a loan you will get those shares from your broker, मतलब ब्रोकर पैसा भरेगा वो 1 लाख शेयर के, और फिर आप एज अ लोन फैसिलिटी यू विल गेट दोज शेयर्स फ्रॉम द ब्रोकर, तो फिर वो जितना भी परसेंट रहेगा ब्रोकर टू ब्रोकर, वो इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। Okay. आई थिंक या शिला मैम, Yes, sir. माइंड Sir, may I ask one question? सर, मुझे आवाज क्लियर नहीं है। Yeah. May I ask one question? या You said defense we can invest right now, but all the defense shares are very high. So is it right time? defense shares are high, but if you see the correction these shares have come to, one Right. can buy, and considering the आजू बाजू का जो सिचुएशन चल रहा है उस पर थोड़ा Right. अच्छा मोमेंटम आएगा इंडस्ट्री में। Okay. Thank you. Also, one of the good sector to invest is consumer goods, consumption, FMCG जो हो गया, टाटा कंज्यूमर, ITC, डाबर, ब्रिटानिया, ये भी इंडस्ट्री अच्छा है अभी फिलहाल, वन कैन इन्वेस्ट। या Sir, त्रिशला मैम, I have a question, sir. या अभी सपोज मैंने मेरे बैंक के ऐप में डाला था कि मुझे घर बनाना है 5 साल में, ठीक है ना? ओके तो ओके he suggests me some say 5 to 6 companies to invest in, different 5-6 companies to invest. It's like every month आप 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करो तो आपका 5 years में आपका घर रेडी हो जाएगा। ओके। So is it reliable कि वो लोग जो सजेस्ट कर रहे हैं हम उस 5-6 कंपनीज में इन्वेस्ट करें? They were all diverse.
एक ही नहीं था, अलग अलग थे। तो मैं इज अभी इट सेफ? धन ऐप, राइट? इज इट सेफ सर? No, I can't comment on it actually. There's a third party product which is not offered by us, so उस पे मैं कोई कमेंट नहीं मतलब कर सकता. हम उनके ऊपर रिलाई करें या नहीं, या फिर हम खुद अपना स्टडी करके फिर करें? You should do your own study, I would say. अच्छा अच्छा, तो अभी जैसे मोतीलाल भी है तो वो भी तो थर्ड कंपनी है ना, हम उनके ऊपर डिपेंड करके ही करते हैं So ना। मैं मेरी गारंटी दे सकता हूँ ना, what I am saying. I can't guarantee अच्छा what others are saying. अच्छा, सर इवन दे आर लाइक अ थर्ड पार्टी? No, see, the service we are providing, the service the other guy is providing, that is like that differs from person to person and the investment approach. अभी उनका investment idea कैसा है, research कैसा है, उस पे मैं बोल नहीं पाऊंगा. And now we ओके have a good legacy, rich legacy of 30 years. We are a market leader. So you are wise enough to understand like whom you are comparing, right? राइट। तो ये कैसे आप लोग चार्जेस कैसे लेते हो? मतलब अभी जो मैंने सपोज एसआईपी चालू किया, 6 कंपनी से मैं एसआईपी करती हूँ, तो आप 6 के अलग अलग लोगे या मेरा जो टारगेट है उसके ऊपर आप लोगे? नहीं नहीं, एसआईपी का तो ये नहीं होता है. एसआईपी में ब्रोकरेज नहीं लगता है. ओके डायरेक्टली इन्वेस्ट यू विल गेट दी रिटर्न्स, मतलब ऐसा है. ओके, बट कंपनी फिर क्या बेनिफिट है कंपनी को? वो बिजनेस मॉडल तो मुझे नहीं पता, बट म्यूचुअल फंड्स में सेबी का ही रूल है कि यू कांट चार्ज ब्रोकरेज फ्रॉम क्लाइंट्स. अच्छा, नहीं मैं पूछ रही हूँ मोतीलाल का उसमें क्या बेनिफिट है अगर वही मैंने वही आप किया तो? उस पे वही. Hope I'm audible. या स्वामी. तो मीनल जी, वी हैव 2 स्पॉक्स फॉर विच आपके ये जो सारे सवाल है ना रिगार्डिंग टू हाँ द ब्रोकरेज या तो फिर आपका ये व्हाट आर द चार्जेस एंड ऑल, सो हाँ वी हाँ। हैव स्पॉक के नाम ग्रुप में डाले हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, दे विल हेल्प अच्छा यू अच्छा, आउट. ठीक है, ओके मैम। Okay, I think I hope there are not any more questions. Yeah. Thank you so much, Rishikesh. It was Yeah. really a pleasure listening to you, and very, very well explained in a very, very good manner. Thank you Thank so you. much. Yeah. So, ladies, looking forward for the next session on Tuesday. Thank you so much, everyone, for joining in. Thank you.